ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾಮತವಯ್ಯ ಯಾಕುಳವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾಮತವಯ್ಯ ನಡೆಯದೆಂದು ಕಥೆಯು ಗೆದ್ದಲಿಡಿದು ಹೋಗೈತೆ ಗೆದ್ದಲಿಡಿದು ಸಾಗದೆಂದು ಹಳೆಯ ರೂಟಿ ರಥವ ಮುರಿದು ಬಿಟ್ಟೈತೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೈತೆ ದೇವರು ಬಸಿಯ ಜನ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಯಾಕುಳವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾಮತವಯ್ಯ ಯಾಕುಳವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾಮತವಯ್ಯ ಯಾಕುಳವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾಮತವಯ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ಒಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೋಡಿ, गाँव हमारा ये गली हमारी है. बोलना सभी, गाँव हमारा ये गली हमारी, गाँव हमारा ये गली हमारी, गाँव हमारा ये गली हमारी. बस्ती हमसे अरे काम हमसे रे, बस्ती हमसे रे ये काम हमसे रे. कुदालपना बैलो अपना बैलो अपना रे बैलु गाड़ी अपना रे बैलु गाड़ी अपना रे. अमीर कौन रे उसका जुल्म क्या रे, मोदी कौन रे उसका जुल्म क्या रे, मोदी कौन रे उसका जुल्म क्या रे. ऊರು ನಮ್ಮದು ಈ ಕೇರಿ ನಮ್ಮದು, ಊರು ನಮ್ಮದು ಈ ಕೇರಿ ನಮ್ಮದು, ಊರು ನಮ್ಮದು ಈ ಕೇರಿ ನಮ್ಮದು, ಊರು ನಮ್ಮದು ಈ ಕೇರಿ ನಮ್ಮದು. ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು, ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಸುತ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಹಾರ ನಮ್ಮದು ಕೂದ್ಲಿ ನಮ್ಮದು, ಬಂಡಿ ನಮ್ಮದು ಬಂಡೆತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಬಂಡಿ ನಮ್ಮದು ಬಂಡೆತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಬಂಡಿ ನಮ್ಮದು ಬಂಡೆತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಬಂಡಿ ನಮ್ಮದು ಬಂಡೆತ್ತು ನಮ್ಮದು. ಹುಡಿಯ ನೋಡಿರೋ ಅವನ ಜೋಕು ನೋಡಿರೋ, ಹುಡಿಯ ನೋಡಿರೋ ಅವನ ಜೋಕು ನೋಡಿರೋ. ಅಣ್ಣ ತೆಲುಗು ಬರ್ತದ? ಊರು ಮನದಿರಾ ಈ ವಾಡ ಮನದಿರಾ, ಊರು ಮನದಿರಾ ಈ ವಾಡ ಮನದಿರಾ, ಊರು ಮನದಿರಾ ಈ ವಾಡ ಮನದಿರಾ, ಊರು ಮನದಿರಾ ಈ ವಾಡ ಮನದಿರಾ. ಪಲ್ಯ ಮನದಿರಾ ಪ್ರತಿ ಪನಕ್ಕೆ ಮನಮೆರಾ, ಪಲ್ಯ ಮನದಿರಾ ಪ್ರತಿ ಮನಕ್ಕೆ ಮನದಿರಾ, ಪಲ್ಯ ಮನದಿರಾ ಪ್ರತಿ ಪನಕ್ಕೆ ಮನಮೆರಾ, ಪಲ್ಯ ಮನದಿರಾ ಪನಕ್ಕೆ ಮನದಿರಾ. ಸುತ್ತಿ ಮನದಿ ಕತ್ತಿ ಮನದಿ ಪಾರ ಮನದಿ ಪಲಕ ಮನದಿ ಬಂಡಿ ಮನದಿರಾ ಬಂಡೆತ್ತು ಮನದಿರಾ, ಬಂಡಿ ಮನದಿರಾ ಬಂಡೆತ್ತು ಮನದಿರಾ, ಬಂಡಿ ಮನದಿರಾ ಬಂಡೆತ್ತು ಬಂಡಿ ಮನದಿರಾ ಬಂಡೆತ್ತು ಮನದಿರಾ. ದೊರೆಯೇಂದಿರಾ ದೊರ ಪೀಕುಡೇಂದಿರಾ, ದೊರೆಯೇಂದಿರಾ ದೊರ ಪೀಕುಡೇಂದಿರಾ, ದೊರೆಯೇಂದಿರಾ ದೊರ ಪೀಕುಡೇಂದಿರಾ, ದೊರೆಯೇಂದಿರಾ ದೊರ ಪೀಕುಡೇಂದಿರಾ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಆಡೋದ ಎಲ್ಲ ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ शुक्रिया. तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, कौन का मसला है बोलने का. कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो. वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा. काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा. अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. बस नहीं आई आवाज हमारी
पार्लियामेंट तक जाना है, कानून में जूझना है, वो मिनिस्टरों के और प्राइम मिनिस्टर के अंदर आवाज आपकी ऊंची करें। ये 2 निमिष 2 स्लोगन ಅಷ್ಟೇ। अरे बेके बेको बेके बेको बेके बेको बेके बेको ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು। ಧಿಕ್ಕಾರ 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 कैसे स्लोगन बताओ रिपीट करो। ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ರಕ್ತ, अरे ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ರಕ್ತ, ಅರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ। ಮಾನವ ಜಾತಿಯ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ಹೆಂಗೆ? ಹೆಂಗೆ? तत्पराक्षी की तमन्ना हमारे दिल में अरे तुमने जब तब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तुमने जब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, हम भी उसको जब्त करेंगे एकता के हथियारों से। गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। आवाज दो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎಮೋಷನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜನ 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 ಕಾಂಚನದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇವರ ದಿಂಡರ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯ. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕೋಗಿಲೆಯ ದನಿ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೋಗಿಲೆಯ ದನಿ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಲದ ಒಳಗಿನ ಇಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮರದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗಿಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮರದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗಿಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹವಗಳು ಇಂದು ನಾವು ನಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ತೋಪುಗಳು ಇದ್ದಾವಣ್ಣ, ಆ ಊರನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆಗಳು ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲನೇ ನರುತ್ತಲಿದ್ದವು, ಹಸಿರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುರಿಗಳು ಆಟ ಪಾಠ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು, ದೂರವಾಯಿತು ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಣ್ಣ, ದೂರವಾಯಿತು ಆ ಸಂಬಂಧ, ಬಿಸಿ ಬೀರಿದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯ. ಟಿಂಗ್ 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 ತಂಬೂರಿ ಇಲ್ಲ, ಜಗನಗ ಜಗನಗ ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಸು ಪುಸ್ಸು ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಕೊಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೊಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾಲವೇ ಬತ್ತಿ ಹೋಯಿತು, ಸಾವಿರ ಹಾಡಿಗಳು ದಾಟಿ ಹೋದವು, ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯ. ಎಲ್ಲ ಮಾಯ, ನಾಳೆ ನಾವು ಮಾಯ. ಅರಿಶನ ನುಂಗಿತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ನುಂಗಿತು. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। येते चीजों बेंगलुरु में मुसलमान येते चीजों येते चीजें का गैरत जिंदा है, सबका गैरत मर गया है बेंगलुरु में।
काहे मुसलमानों, काहे ये हमारे घर की प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारे एक जने की प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारे बहन बेटा को देने का देश की प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारे दीन का मसला, ये हमारे इस्लाम का मसला, ये संविधान का मसला। काहे मुसलमानों, तुम्हारा जमीर कहाँ है? क्या आज एक दिन अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं कर सकते? क्या हमारा ईमान इतना कमजोर? बोलो, कहाँ गया तुम्हारा ईमान? बात करती ना तुम्हें मैदानों में उतरने की, अल्लाह की राह में। आज कहाँ गया तुम्हारा जमीर, तुम्हारा ईमान? हाँ, ये संविधान के अगर तुम ये संविधान बदलने की कोशिश करते तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमें तुमने बदलना थी। अगर ये संविधान को बदले तो हमें तुमने बदलती। ये हुकूमत से अपील है कि हमें ये वक्त बिल्कुल रिजेक्ट करती और जैसा था इंशाअल्लाह हमने वैसा वक्त वापिस होना। बेंगलुरु के मुसलमानों, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों सुनो, जब बात अल्लाह के दीन की आती, जब बात अल्लाह के इस्लाम की आती, ये हमारा ईमान, ये हमारा ईमान। लोगों को जमाने के वास्ते खामोश खामोश। माशाल्लाह बहुत जोश है, जोश बहुत है, जोश के साथ नौजवानों ने हमारे जमात के सदर साहब यूसुफ गंदी साहब से खड़ी हो इधर वो थोड़ा बात और भाइयों, स्लोगन पुकारना जो है, हुकूमत को हकीकत में स्लोगन से डर होता है। मेरी बात सुनो 2 सेकंड। स्लोगन ये जज्बा आज विधानसभा ने पार्लियामेंट को सुना ना, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जय टिप्पू जय भीम, जय फातिमा जय भीम,
माशाअल्लाह, ये जोश, ये जज्बा, मुझे यकीन है कि आपकी आवाज अनकरीब प्राइम मिनिस्टर के तख्त के जो पाए उसको हिला के रख देगी। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, नहीं खामोश प्लीज, ये जोश हो गया, जोश को जारी रखेंगे मगर जोश के साथ होश का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं दावत देता हूं जनाब यूसुफ कन्नी साहब को, जो कर्नाटका जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं। गौर से सुनिए, ये जो मूवमेंट है ये आज खत्म नहीं होगा, आज से शुरू होगा और भी बहुत सारे एहतजाज होंगे जब तक कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। मगर आप लोगों से गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कि तजुर्बेकार लोगों से सुनिए और इनका मैसेज अपने गली कूचों तक पहुंचाइए। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ औकाफ के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। ये कहते हुए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, यूसुफ कन्नी साहब को गौर से सुनिए, ये काफी तजुर्बा रखते हैं। यूसुफ कन्नी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान के लोग बहुत पावरफुल हैं। मौजूदा पार्लियामेंट में बीजेपी की हुकूमत बहुत कमजोर है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जब हमने आवाज बुलंद की, अंग्रेजों को इस मुल्क से भागने पर हमने मजबूर किया था और हमें पूरा यकीन है आइंदा आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को पार्लियामेंट छोड़ना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट इसे इसलिए छोड़ना पड़ेगा, उसने 10 साल के अरसे में पार्लियामेंट के अंदर अभी तक जितने उसने बड़े फैसले किए हैं, इसके खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़े तबकात के खिलाफ, मजाहिब को मानने वालों के खिलाफ, सबसे बड़ी बात है उसने जो फैसले आज तक लिए हैं वो दस्तूर हिंद के खिलाफ उसने फैसले किए हैं। आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट में फैसले के बाद अमित शाह ने, वजीर दाखिला, उन्होंने ये कहा कि क्या तुम माइनॉरिटीज पार्लियामेंट पे तुम डराना चाहते हो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अमित शाह जी से कि पार्लियामेंट में तुम डराना चाहते हैं माइनॉरिटीज को। इस तरह के फैसले लेकर जो दस्तूर हिंद के खिलाफ हैं, आर्टिकल नंबर 26 जिसमें इस मुल्क में रहने वाले तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब पर चलना, अपने मज़ाहिब के लिए इदारों को कायम करना और अपने मज़ाहिब के प्रमोट के लिए जद्दोजहद अमन के साथ करते रहना, ये दस्तूर हिंद में दिया गया आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ है, जो पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को वक्फ एक्ट बनाने के लिए उन्होंने फैसला किया था। हम सब, ना सिर्फ हम सब, आज के इस जलसे में, आज के इस कार्यक्रम में, आज के एहतजाज में जिन लोगों ने आपके सामने इज़हार ख्याल किया है, आपको मालूम होगा कि सिर्फ मुसलमानों ने इज़हार ख्याल नहीं किया है, यहाँ हिंदू भाइयों ने इज़हार ख्याल किया, यहाँ दलितों ने इज़हार ख्याल किया, यहाँ आदिवासी के लीडरों ने यहाँ इज़हार ख्याल किया है। ये एक सिर्फ छोटा सा आईना है जो हिंदुस्तान की हुकूमत को हम दिखाना चाहते हैं। पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में जितने बड़े एहतजाजात हुए हैं, यकीन मानिए ये वक्फ बिल जो तुमने पास किया है, ये दस्तूर हिंद के खिलाफ करते हुए हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम ही अवाम को तुमने अपने खिलाफ खड़ा कर दिया है। यकीन मानो इसे लीड करने के लिए हिंदुस्तान में आजादी के मौके पर भी हमने लीड किया था।
दस्तूर जब बन रहा था उस मौके पर भी बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ हमने दिया था। क्योंकि इस मुल्क का दस्तूर बने, ये मुल्क जमहूरी बने, इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कायम रहे, इस मुल्क के अंदर तमाम इंसानों का हक मिलना चाहिए। इसके लिए हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सदारत में बनने वाली टीम में हमने बहुत ही अहम रोल अदा किया था। आज भी हम ये कहेंगे, हिंदुस्तान के दस्तूर में बुनियादी बातों को अगर तुम तब्दील करने के लिए कोशिश करते रहोगे, इस मुल्क में उसकी मुखालिफत करने के लिए हम सबसे अव्वल में खड़े रहेंगे। उसके मुखालिफत करने में हम सबसे अव्वल में खड़े रहेंगे। लिहाजा ये पूरा मजमुआ ये अपील करता है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। 2 दिन तक तुमने जो डिबेट किया, 2 दिन तक आपने जो सुना, जिस तरह से आपने हुकूमत की जराह की है, आइंदा हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप वक्फ बिल को पूरी तरह से आप रिजेक्ट कर देंगे। हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाला दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ के पिछड़े तबकात, यहाँ के मजदूर, यहाँ के मज़ाहिब को मानने वाले, इस एक्ट को अक्सर तौर पर हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काला कानून वापस लो। अरे वापस लेना होगा, लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, हम मुल्क बचाने निकले हैं, मुल्क बचाने निकले हैं, दान बचाने निकले हैं, सोच बचाने निकले हैं, दीन बचाने निकले हैं, दंगा तानाशाही से, हालात की गुंडागर्दी से। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा कोई प्रोटेस्ट शुरू से अजल से लेकर आखिर तक बगैर स्लोगन के, बगैर आवाज उठाए नहीं हुआ है। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, अपनी आवाज को बुलंद कर कर नारा लगाएं। शुक्रिया। आजादी, आजादी, हिंदुस्तान, संविधान। शुक्रिया नौजवान। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये लोग हमेशा से कोशिश करते आए हैं, ये हमेशा से कोशिश करते आए हैं कहीं न कहीं मजहब के नाम पे इंतजार पैदा करे, जात के नाम पे इंतजार पैदा करे। अब यहाँ पे ये पसमानदा मुसलमान, अशरफ मुसलमान, शिया मुसलमान, बोरा मुसलमान के नाम पे ये हमको बांटना चाह रहे हैं। आज इस मंच से हमारा इत्तेहाद हम उनको दिखाएंगे। मैं दावत देता हूँ MC अब्बास, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो नेशनल मीडिया पे जाकर ये बीजेपी की जो बैंड बजाते हैं, जो मेरे शिया भाई हैं, उनको दावत देता हूँ आपको मुखातिब करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। ये हमारे दोस्त जो MC अब्बास हैं, आप इनको चैनल वगैरह में देखे होंगे, बड़े बड़े नेशनल लेवल एंकर्स हैं। उनका नाम इस मंच पर लेना भी दुरुस्त नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ। अर्नब गोस्वामी को बे, you have asked me to come and speak. I have come here. You just listen. ऐसे शेर कई हैं हमारे दरमियान, तो हम लोगों को इकट्ठा करने की ये जो काम चल रहा है, क्या बोले, शेर मियां भी हैं। MC अब्बास साहब की सीट हिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी।
भाइयों, बहुत लोग मुझे बोलते हैं क्यों ये घटिया चैनल में जाते हो, क्यों ये गोदी मीडिया जैसे चैनल में जाते हो। मैं कहता हूं ये नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है। जैसे कहते हैं कि जैसे मेरे बड़े भाई एजी खान साहब ने कहा, एक बार नहीं, हालांकि रोज ये नेशनल मीडिया में मेरा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सबसे पहले तो मैं दिल पर हाथ रख के कहना चाहूंगा आप सबसे, ये जो मेरी शेर है गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, आपके दिल को चीर देगी, आर पार हो जाएगी। कि बात दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा, उन नदियों के कुछ नाम रखे, इन बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से कह दो, इन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा में नहीं चलेगी। अगला शेर ये छोटा फैंटा के लिए, आप जानते हो कौन है छोटा फैंटा, नीचे से ऊपर नारंगी है, ऊपर खाली। गौर से सुनिएगा, रहबर जो कौम का ढोंगी है, रहबर जो कौम का ढोंगी है, याद रखो, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। अभी आते हैं मेरे भाइयों, ये जो रफ एक्ट चल रहा है, बहुत जरूरी है प्रोटेस्ट करना, बट मैं अगले 2 मिनट ही बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेरे भाई जो है माशाल्लाह इंडिया के जबरदस्त एंकर हैं, आसिफ भाई बता रहे थे मुझे कि अगर 4, 5, 6, 7 लोग इतना मजमा जमा कर सकते हैं, तो बस सोचिए हम सब अगर एक पहलू अपने व्हाट्सएप से करें तो यहाँ पर 1000 का मजमा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 5000, 10,000 और लाखों का मजमा हो सकता है इंशाअल्लाह। इस बात को याद रखो। अभी अगली बात, ये वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे बहुत सवाल करते हैं, ऐसे कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी हूँ, या मैं इंडिया ऑपोजिशन की वॉइस हूँ। इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, चाहे वो एनडीटीवी हो, इंडिया टुडे हो, CNN हो, या टाइम्स नाउ हो, या अरब कबाब रिपब्लिक हो। आपको हर एक को एक वादा करना है मुझे, बहुत अच्छा कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन गोदी मीडिया इतना चालाक है, वो माइक लेके पहुंच जाएगा, अपना लोगो छपा के पूछेगा तुमको पता है कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, किस बात का प्रोटेस्ट है, ये करेंगे। तो जिम्मेदारी के साथ आप सबसे मेरी एक दरखास्त है कि आप सब थोड़ा सा वक्त के बारे में पढ़ ले, ठीक है। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता के जाऊंगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारा देश चलता है संविधान से। संविधान में आर्टिकल 25 में बताया गया है कि हर धर्म को, एवरी रिलीजन हैज अ राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। ये समझो, दिस इज अ वायलेशन ऑफ दैट। आर्टिकल 14 स्पीक्स ऑफ इक्वालिटी। और बहुत से सवाल उठते हैं कि ये क्या है, कैंगरू कोर्ट है वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक सवाल पूछा था, वो जो मैडम आती है टाइम्स नाउ की, आप सबको पता है कौन है, वो मुझे सवाल पे सवाल कर रही है, सवाल पे सवाल कर रही है। भाजपा से सवाल नहीं, आरएसएस से सवाल नहीं, वीएचपी पे सवाल मुझसे। मैंने कहा नाविका जी दिल पर हाथ रख के बताइए, आप टाइम्स नाउ की एंकर है या भाजपा की प्रवक्ता है। अल्लाह सुब्हान व तआला का नाम लेके बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, ये आपको दिखेगा। देखिए एक चीज याद रखिए, संविधान को आगे रखने में मजा आता है, गोदी वालियों की बैंड बजाने में मजा। ये जो हमारे भाई हैं यहाँ पे, हमारे जो मीम भाई, भीम भाई, इनका बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, ये याद रखिएगा। और दूसरी बात, मुझे और एक सवाल पूछा गया था, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, मुझे सवाल किया गया था आज तक की अंजना ओम मोदी। मैंने कहा अंजना ओम मोदी सुन लो, मुझे सवाल किया गया था आपके लिए क्या ज्यादा है, आपका इस्लाम या संविधान, आपका शरिया या कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा अंजना जी आपके लिए कौन ज्यादा कीमती है, आपकी माँ या आपकी बाप। सबको गूगल कर लीजिएगा, ये जो सवाल पूछते हैं मैं कहूंगा
मैंने उसके जवाब से पहले कहा कि अगर ये जवाब का आपने सवाल दे दिया कि मुझे माँ है या बाप है, दोनों आपसे शर्मिंदा हो जाएंगे। नेशनल मीडिया पे बैठ के आप शर्मिंदा कर रहे हो, आप शर्मिंदा कर रहे हो अपने माँ बाप को। और एक चीज बता दूं भाइयों, गौर से सुनना, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। उस इंसान को बोलो, कभी भी याद रखो वो इंसान बुरा है। और आखिर का 1 मिनट लूंगा मैं मेरे भाइयों, और सुनो, जितना हम यहाँ पर हैं, व्हाट्सएप के रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, एक चीज याद रखो, उसके साथ मैं रोक नहीं लाऊंगा, देखो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो संविधान को। Please do some research. Please Google about it. Do research. It's very easy. Because why? Because I want every single individual here to be able to represent our community, our religion, humanity, even in the highest of orders. Not just the national media, even in the international media. Lastly, I'd like to say, my dear friends, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर में मैं ये कहूंगा, अगर हम डरेंगे या कोई भी ताकत हो, आरएसएस की हो, बीजेपी को हो, वीएचपी की हो, अगर हम समझेंगे ये इतने शक्तिशाली लोग हैं, अरे मुझे ये तो सवाल किया गया था, योर फोटोज विद कन्हैया कुमार, योर फोटोज विद उमर खालिद, यू आर पार्ट ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पूछता है दर्नब गोस्वामी। मैंने कहा मिस्टर दर्नब गोस्वामी, असली टुकड़े टुकड़े गैंग, द रियल टुकड़े टुकड़े गैंग ऑफ इंडिया इज गोदी मीडिया, बिकॉज you people like you divide between Hindu and Muslim. Shame on you, laptop media. और जैसे मेरे भाइयों, आखिर में मैं कहना चाहूंगा, आखिर में मैं कहना चाहूंगा, 2 दिन पहले मुझे एक सवाल किया गया था, वो एंकर का भी नाम बता दूंगा, टाइम्स नाउ पे स्वाति जोशी थी, एंकर बता रही थी मुझे कि ये जो आप लोग अभी पता है हमको प्रोटेस्ट करने लगेंगे, जाएंगे, और एक वहां पे भाजपा की प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन संजू वर्मा कहती है तुम लोग करो प्रोटेस्ट, याद रखो डंडे पड़ेंगे। मैंने कहा संजू वर्मा, तुम्हारे डंडों में इतना दम नहीं, तुम्हारे डंडे हमारी हिम्मत में है, तुम्हारे डंडे झुक जाएंगे, लेकिन हौसला बुलंद रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर हर कोई जो है अपना संदेश सैक्रिफाइस करके, याद रखो, सिर्फ मैं एक ही स्पीकर नहीं हूँ, बहुत जबरदस्त स्पीकर है यहाँ पे, हमारे जो तमाम भाई हैं, हम संविधान के लोग, तमाम जो इतना एक मुकम्मल आगाज किए हैं, मेरा सलाम है हर एक पे। और एक चीज याद रखो, अगर आपको बेहतर अपनी आवाज रखनी है, रिसर्च करो, और मैं हाथ जो कहता हूँ कि पढ़ो उसके बारे में, do your research, learn about it, and every single member should be an ambassador of the community. Every single sister of mine, mother of mine, brother of mine, father of mine should be a voice to reckon with. Very importantly, और भाइयों, मैं इस पर एक स्पेशल सीरीज कर रहा हूँ, अगर हो सके तो मेरा पेज है MC अब्बास, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर है, उस पर ज्वाइन करो। मैं एक वीडियो डालूंगा 5 मिनट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक ये वीडियो का देख लो, यू विल बी वेरी नॉलेजेबल। 100 डिबेट्स का जो मैंने एक निचोड़ बनाकर रखा है, वो डिबेट है, ताकि कोई मीडिया का हो, अर्नब हो या अर्नब का बाप हो, जो भी आपसे सवाल करे ना, करारा जवाब दो आप, करारा। और याद रखो मेरे भाइयों बहनों, जो अल्लाह से डरता है वो किसी के बाप से नहीं। मुझे बहुत सारे ट्विटर आते हैं, गो टू पाकिस्तान, जेल कर देंगे, तुम बहुत बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नेशनल मीडिया में बात करते हो, लेकिन याद रखो, डर हमारे ना दिल में रहना चाहिए, ना जहन में रहना चाहिए। जो डर गया वो मर गया, और ये कौम डरेगी नहीं, जिंदा है। आखिर में कहूंगा, एक जबरदस्त एक्टर ने कहा था, जानी हमें रोक सके इस ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे
भीम भाई है, जो भीम भाई है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ना मैं ये हिंदुस्तान है क्या, ना मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। मेरा नाम MC अब्बास है। रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करें। थैंक यू। Amen.